کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب جنگ میں تھے. جنگ ہو رہی تھی تو مقابلے میں ایک پہلوان آیا اور جو مولا کی طرف سے جا رہا ہے اس کا نام ہے، مولا کا صحابی ہے علقمہ، وہ جا رہا ہے. اب جو مقابلے میں آیا ہے وہ جب آخری طرف سے آیا ہے، اچھا اس وقت عرب میں یہ تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی تو دونوں طرف سے جو لڑنے والے آتے تھے وہ ریچ سے پڑھتے تھے، یعنی کوئی ایسی چیز پڑھتے تھے جس سے پتا چلے کہ اس کا دادا کون ہے، اس کا باپ کون ہے، نسل در نسل کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو یہ باعث فخر محسوس کرتے تھے وہ ریچ پڑھ کر. اب جو پہلوان آ رہا ہے وہ مسلسل 30ویں پارے کی سورہ نبا کی پہلی آیت پڑھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. آخری پارے کی پہلی سورہ کی پہلی آیت کو پڑھ رہا ہے، بار بار مسلسل تلاوت کر رہا ہے. علقمہ مولا کا صحابی نے جانے لگا، مولا نے کہا علقمہ رک جا. اچھا اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اما یتساءلون، اللہ نے ایک خبر بھیجی. خاموش نہیں رہتی. مولا کا علقمہ آپ رک جائیے، میں چلتا ہوں. مولا اس کے مقابلے میں آئے، ان کا تم جو بار بار آیت پڑھ رہے ہو عن النبأ العظیم، جانتے ہو نبأ العظیم کون ہے؟ تم بھی جانتے ہو جو بار بار آیت پڑھ رہے ہو. اس پہلوان سے مولا نے کہا آپ کے مولا کہہ رہے ہیں، بڑا بیدار ہو کے بیٹھیے، مسکرا کے بولیے، مسکرا کے سنیے. مولا نے کہا تم جو بار بار کہہ رہے ہو عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر اللہ نے بھیجی ہے. وہ جانتے بھی ہو، تم بھی جانتے ہو کہ یہ خبر کون سی ہے. اس خبر کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ وہ خبر کون سی ہے. صلاۃ علی محمد. اقرار کرتے ہو، مکر جاتے ہو پھر مان لیتے ہو، پھر مکر جاتے ہو پھر مان لیتے ہو. نبی نے تمہیں خبر دی تھی، تم سن کر بول پہنچا. اس پہلوان سے مولا نے کہا غدیر میں تمہیں خبر ملی تھی اور تم خبر سے پھر گئے تھے. اب میں یہاں وضاحت کروں. اللہ نے نبی بھیجا ہے. نبی کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ. ہم سب نبیوں کو ماننے والے ہیں. نبی کسے کہتے ہیں؟ بچیاں بولیں بسم اللہ. خبر دینے والے، پیغام پہنچانے والے، خبر دینے والے کو بسم اللہ. خدا آپ کی معرفت میں اضافہ کرے، خدا نے نصیب نہیں کرے بیوی کے صدقے میں. یہ خبر پہنچانے والا ہوتا ہے نبی، یعنی جو خبر دینے والا ہو. میں نبا کی بات کر رہی ہوں یہاں. نبا العظیم، اللہ نے بہت بڑی عظیم خبر بھیجی ہے. نبی ہوتا ہے خبر دینے والا. آدم سے لے کر خاتم النبی تک کتنے نبی ہیں؟ 24,000 نبی ہیں. ابھی بھی کچھ پارا میری ادھروں میں دیکھ رہی ہیں، مل کر دیکھیے. 1,24,000 نبی ہیں. 24,000 نبی ہیں. 1,24,000 خبر دینے والے ہیں. جملہ وصول نہیں کیا آپ نے، جملہ بدل لو. اچھا جو آ رہے ہیں ان کو آنے دیجیے. آپ میری طرف توجہ رکھیے کیونکہ مجلس میں سب نے شرکت کرنی ہے. کوئی پہلے آ رہا ہے، کوئی بعد میں آ رہا ہے. جیسے جیسے وقت ملتا ہے مجلس میں آتے ہیں. آپ میری طرف دیکھیے. اللہ نے نبی بھیجے 1,24,000. نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا. جملہ بدل دو کہ خبر دینے والا. 1,24,000 خبر دینے والے آئے ہیں. کون سی خبر پہنچائیں گے جس کو اللہ نے اتنا بڑا اہتمام کیا. ایک کے بعد دوسرا خبر دینے والا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. آدم کو اللہ نے بھیجا. اللہ نے آدم کو بھیجا. آدم کیا ہے؟ آدم کیا ہے؟ خبر دینے والے. توجہ چاہتی ہوں، خبر دینے والے ہیں. آدم خبر پہنچانے والے ہیں. خبر دینے والا کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. اچھا وہ خبر جو دے رہا ہے وہ خبر کون سی ہے؟ اللہ نے کہا ہم نے آدم کو تمام کے تمام آسمان سکھا دیے ہیں. تمام کے تمام آسمان کا علم دے دیا ہے. ان
علم میں سے جو اللہ نے آدم کو دیا ان اسماء کا وہی خبر تھی جو آدم نے پہنچانی تھی. اس کے بعد نوح آئے, نوح نے کشتی بنائی, کشتی پار لگی, دوبارہ سے دنیا سٹارٹ ہوئی. آدم ثانی, ابراہیم آئے, آگ گلزار بنی, موسیٰ آئے, معجزہ عطا ہوا, عیسیٰ آئے, چوتھے آسمان پہ اٹھائے گئے. ہم نے جب پوچھا یا رسول اللہ, اللہ نے 1,24,000 خبر دینے والے بھیجے ہیں, اس خبر کے بارے میں بتاتے دیجیے نا. نہ آدم نے بتایا, نہ نوح نے بتایا, نہ ابراہیم نے بتایا. میں اپنی توجہ چاہتی ہوں آپ سب ماں اور بہنوں سے, بالخصوص جو میری ماں یہاں بیٹھی ہیں ان سے دعا لینے کے لیے. اللہ نے آدم کو بھیجا, خبر نہیں بھیجی. اللہ نے نوح کو بھیجا, خبر ساتھ نہیں آئی. ابراہیم کو بھیجا, خبر ساتھ نہیں آئی ہے. اللہ نے شیش کو بھیجا, خبر ساتھ نہیں آئی ہے. اللہ نے ادریس کو بھیجا, خبر ساتھ نہیں آئی ہے. الیاس کو بھیجا, خبر ساتھ نہیں آئی ہے. ہود کو بھیجا, خبر ساتھ نہیں آئی ہے. داؤد کو بھیجا, خبر ساتھ نہیں آئی ہے. ابراہیم آئے, خبر نہیں پہنچائی ہے. اور یعقوب آئے, خبر نہیں پہنچائی ہے. اسحاق آئے, خبر نہیں پہنچائی ہے. اسماعیل آئے, خبر نہیں. سب خبر لے کر آئے تھے, لیکن پہنچانے کب ہے یہ خبر؟ خبر دینے والا اللہ نے کہا 23,000 بیچ دیے, اب ایک کو روک لو گا جب تک یہ خبر نہ پہنچائی. رسالت کا کوئی گوارا لیکن اللہ نے کہا 24ویں پر میں روک رہا ہوں, یہ خبر پہنچانی ہے. ہم نے پوچھا پروردگارا, آپ نے کہا ہے کہ میرے مولا کائنات میں ہر نبی کے ساتھ ساتھ نصرت کرتے چلے آ رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. میرے نبی جتنے اللہ نے خلق کیے ہیں, 1,24,000 نبی اللہ نے بھیجے. سارے کے سارے ہمارے نبی ہیں, سب پہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر ایک سے بھی ہم پوچھ جائیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں, یعنی ہمارا عقیدہ ثابت نہیں کرتا. ہم اگر ایک کا انکار کرتے ہیں, معاذ اللہ سما معاذ اللہ, یعنی ہم ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتے. سب پہ عقیدہ رکھنا, سب پہ ایمان رکھنا واجب ہے, تبھی ہم مسلمان ہوں گے. توجہ چاہتی ہوں اپنی بہنوں سے, بہت جلد ہی اپنا موضوع سمیٹ رہی ہوں. یہ خبر دینے والے کتنے ہیں؟ 1,23,000 خبر دینے والے گزر گئے ہیں. ایک ہے, ایک ابھی ہے.
परवरदिगारा बताना किस किस की कैसे कैसे मदद की। अल्लाह ने कहा मैंने आदम को जमीन पर भेज दिया, जन्नत से निकाले गए, आदम इधर रो रहे हैं, बीबी हवा उधर रो रही है, रोते रहे। एक दिन हमने जबरील से कहा जाओ इनके पास और जाके इनसे कह दे इन नामों के जरिए से दुआ करो, इन नामों के जरिए से दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल हुई। मैंने पूछा ये जो दुआ कबूल करने का तरीका था, उस दुआ में जो मदद कर रहा था वो कौन था, जो सिखा रहा था वो कौन था। मैंने पूछा कि फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई है तो परवरदिगार उनकी मदद करने वाला कौन था। इतना बड़ा तूफान था, जोड़ा जोड़ा हज़रत नूह ने उधर रखा है, जमाने को मौतर करना तो उधर रखा है, इतना तूफान आया, इतनी बारिश बरसी तो कश्ती चली, कश्ती चल के फिर कश्ती रुकी तो फिर उनकी मदद करने वाला कौन था। मैंने कहा कि आग इब्राहिम को आग में डाला गया था, इतनी आग जलाई गई थी कि मंजनीक के जरिए से जनाब इब्राहिम को आग में फेंका गया था। तो आग जो जल रही थी उसे गुलजार करने वाला कौन था। मैंने पूछा कि देखो ये जो सारे नबी हैं छुप के इनकी मदद की गई है, ज़ाहिरी तौर पे नहीं। मैंने अपने मौला से पूछा तो वही मौला जो उससे पूछ रहे अलकमान के जो वापस बुलाया है उस पहलवान से मुलाकात कर रहे हैं, जंग में है, मैदान जंग में है, वो भी हमला करने वाला, मौला भी हमला करने वाले हैं, जंग में जंग हो रही है। मौला ने कहा तुम्हें पता है वो खबर देने वाला कौन था, वो मदद करने वाला कौन था, तुम भी जानते हो कि उस मदद किसने की थी, वो खबर कौन सी खबर है, वो अजीम खबर कौन सी है। तो अल्लाह ने कहा है मैंने खबर भेजी है, नवाल अजीम, एक अजीम खबर। उस खबर के बारे में जानते हो, जब उसने इनकार किया मैं नहीं जानता। मौला ने कहा तुम्हें एक बार तुम गदीर में थे, उससे मुखातब करके पहलवान से कहा, मौला ने कहा कि तुम गदीर में थे, तुमने पैगाम सुना, फिर तुमने ऐलान किया विलायत का, इकरार किया, फिर तुम पढ़ गए, तुमने फिर से इकरार किया, तुम फिर से पढ़ गए, यानी तुम इकरार करते हो, इनकार करते हो। मौला ने कहा मैं बताता हूँ, आदम की तौबा कबूल करवाने में मैं था, कश्ती पार लगाने में मैं था, मदद कर रहा था। मौला ने कहा गुलजार करने में मैं था, दुनिया से पार करवाने वाला मैं था, ईसा बचाते आसमान में लेके जाने वाला मैं था। हर नबी की मैंने छुप कर नुसरत की है, अकेला मोहम्मद मुस्तफा है जिनकी ज़ाहरान नुसरत करने वाला आनी अबी तालिब है। मैंने कल भी मजलिस में कहा कि हम वहां मौजूद थे, जब ये मजलिस में थे, वो तो वहां गए ना, वहां मौजूद थे ना, आप लोग सब थे ना। अच्छा आप बताएंगे ना बताएं, आपको यहाँ आना बता रहा है कि आप थे वहां, यहाँ बैठना आपका बता रहा है, आप बताएं या ना बताएं, आप सर हिलाएं या ना हिलाएं, आप जबान खोले या ना खोले, लेकिन आपका चलकर यहाँ आना ये बता रहा है कि आप वहां थे। शायद इसी का अक्स खींच रहा है कि हमारे पास अली है, वो इसी का अक्स खींच रहा है। ताला हम अपने पापों की सड़कों में वहां थे और विलायत अली का इकरार कर रहे थे, विलायत अली का इकरार कर रहे थे। इस पहलवान से कम तुम कर जाते हो, मैं अली हूँ, मैंने नबियों को नुसरत की है,
اور محمد مصطفیٰ کی ظاہراً میں نے نصرت کی ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے یہ خبر تم نے پہنچانی ہے۔ کون سی خبر ہے جس کے بارے میں اللہ نے اتنا اہتمام کیا ہے، اتنا اہتمام کیا اس خبر کو پہنچانے کے لیے؟ نبا العظیم، ایسی خبر جو عظیم خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہہ دیا ہے ایک عظیم خبر کے بارے میں آپ کو اطلاع دی جائے گی۔ اللہ نے ایک عظیم خبر بھیجی ہے، عظیم خبر۔ کون سی خبر ہے؟ جس کے بارے میں 1,34,000 پیغمبر آئے ہیں، پہ در پہ خبر دینے والے آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں، تبلیغ کی جا رہی ہے، دنیا بنائی جا رہی ہے، دنیا کو سکھایا جا رہا ہے، کلمہ سکھایا جا رہا ہے، رہن سہن سکھایا جا رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا سکھایا جا رہا ہے، کلمہ سکھایا جا رہا ہے، کھانا پینا سکھایا جا رہا ہے، لیکن اہتمام کیا جا رہا ہے کسی اہم خبر کے لیے۔ اب رسول نے یہاں آ کر کون کون سی غلاظتوں کو دور کیا تھا؟ توجہ چاہتی ہوں، یہاں جب رسول نے اعلان رسالت کیا تو آج میں جاہلیت کے دور میں کون کون سی غلاظتیں تھیں؟ کس غلاظت کو دور کیا تھا؟ کیسی کیسی غلاظتیں تھیں؟ بہت معاشرہ پورا غلاظت میں ڈوبا ہوا تھا۔ رسول آئے، رسول نے آ کے ان کو اللہ کی طرف بلایا، رسول نے دین کی تبلیغ کی۔ میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہی ہوں اس خبر عظیم کی طرف۔ رسول نے تبلیغ کی، رسول نے ان کو انسان بنایا، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں تھے، رسول نے ان کو پہننا سکھایا، رسول نے ان کو کھانا سکھایا، رسول نے ان کو رہن سہن سکھایا، رسول نے ان کو اٹھنا بیٹھنا سکھایا، رسول نے ان کو بولنا سکھایا، رسول نے ان کو رشتہ داری کی صلہ رحمی سکھائی، رسول نے ان کو تمام تر جتنے اعمال تھے سب بتائے۔ بتانے کے بعد رسول جانا چاہتے ہیں اس دنیا سے، لیکن اللہ نے کہا اگر یہ خبر نہ پہنچائی تو تم نے کوئی کام نہ کیا، یہ خبر نہ پہنچائی کوئی کام نہیں کیا۔ طاقت نہیں رہی ہے، بولنا باپ نے ہے کہ اب اگر یہ خبر نہ دی تو تم نے کوئی کام نہ کیا، اب خبر نہ دی تو کوئی کام نہ کیا۔ جو نہیں بول رہے ہیں یہ خبر نہ دی، رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، یہ خبر نہ دی، نبوت کا کوئی کام نہ کیا، یہ خبر نہ دی۔ اچھا آپ اور خاموش ہو گئے، میں نے کہا بولنا ہے اور آپ اور خاموش ہو گئے۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، تم نے یہ خبر نہ پہنچائی، نبوت کا کوئی کام نہ کیا، رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اگر ایک کام تم نے نہ کیا، اللہ کے رسول آپ نے تمام تر اعمال انسانوں کو سکھا دیے، انسان کہلانے کے قابل بن گیا، ورنہ انسان ایسا نہیں تھا، اسے تو اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا تھا، اسے تو کھانا پینا نہیں آتا تھا، انسان ایسا نہیں تھا۔ جاہلیت کے دور میں جس گھڑے سے یا جس جگہ سے جس تالاب سے جانور پانی پیتے تھے وہیں سے انسان پیتے تھے۔ ان کو تو پانی پینے کا سلیقہ نہیں تھا، ان کو تو کھانے پینے کا سلیقہ نہیں تھا، کس نے سکھایا؟ نبی مقرر نے سکھایا، ہمارے نبی نے سکھایا، ہمارے مولا نے سکھایا، ہمارے آقا نے سکھایا، ہمارے رہبر نے سکھایا، ہماری نبی نے سکھایا، ہمارے رسول نے سکھایا کہ انسان کیسے رہتا ہے، انسان کیسے کھاتا ہے، انسان کیسے پیتا ہے۔ یعنی جو نبی کی بات پہ، جو رسول کی بات پہ عمل کرے وہی سنت پہ عمل کرنے والا ہے، جو رسول کی بات پہ عمل کرے وہی سنت پہ عمل کرنے والا ہے، وہی اہل سنت ہے۔ جو رسول کی بات پہ عمل کرے، جو رسول کے کیے ہوئے عمل پہ عمل کرے، جو رسول کی کہی ہوئی بات پہ عمل کرے، جس کے سامنے کام کیا جائے رسول اللہ روکے، وہی تو اصل میں اہل سنت ہے، وہی تو سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ رسول نے 23 سال تبلیغ کی، تبلیغ کرنے کے بعد وہی پہلا جملہ جو پہلی مجلس میں کیا تھا، رسول نے 23 سال تبلیغ کرنے کے بعد ایک ہی بات ہمیں بتائی، دیکھو ہر کام سکھا دیا، ہر بات بتا دی، ہر کام عمل سکھا دیا، یقینا سکھا دی، عمل کرنا سکھا دیا، قرآن سکھا دیا، نماز سکھا دی، حج سکھا دیا، زکات سکھا دی، یعنی تمام تر چیزیں، ایک ہی خلاصہ، ایک ہی بات، تمام تر چیزیں رسول نے سکھا دی۔ رسول نے کہا ایک بات رہ گئی، اگر یہ نہ کیا تو تمام فضول ہے، ہر چیز فضول ہے، سانس لینا آبس ہے، جینا آبس ہے، اٹھنا آبس ہے، بیٹھنا آبس ہے، سورج نکلنا آبس ہے، بغیر بولنا، چاند نکلنا آبس ہے، دن کا آنا آبس ہے، رات کا آنا آبس ہے، بارش کا برسنا آبس ہے، زمین کا یہاں سلامت رہنا آبس ہے، آسمان کا ٹکے رہنا آبس ہے، یعنی کوئی چیز بھی فائدہ مند نہیں ہے اگر ایک کام نہ کیا۔ رسول نے ساری باتیں سکھا دی، سارے کام سکھا دیے، دنیا رہنے کے قابل اس وقت ہوتی ہے اگر یہ خبر دنیا کو بتا دی جائے۔ میں اس خبر کے لیے آپ کو تیار کیا ہے، ہم تنگوش ہو کے اپنے کانوں کو کھول لیجیے، اپنے دلوں کو معطل کیجیے، اپنی زبانوں کو معطل کیجیے، وسائل کا آخری
राहत को खूने जिगर लगाकर मैंने ये खबर आप तक पहुंचानी है। अब आप जहां जहां आप चाहे वहीं वहीं ये खबर पहुंचा दीजिए। रसूल कितने हैं? 1,24,000 खबर देने वाले एक ही खबर लेकर आए। सब नहीं बोले, ये इधर वाली मेरी बहनें मजलिस में बैठी है। ये रसूल खबर लेकर आए। 23 साल रसूल ने तबलीग की एक ही खबर के लिए। 1,23,000 नबी उससे पहले गुजर चुके हैं, वो भी एक ही खबर लेकर आए। सब एक ही खबर के पीछे पड़े हैं, सब एक ही खबर के पीछे पड़े हैं। वो खबर कौन सी है? ऐसी खबर है जिसे बताना अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी, अल्लाह की सबसे बड़ी खबर। मैंने कहा या रसूल अल्लाह इंतजार नहीं होता, जैसे अभी चेहरे देख रहे हो बहुत इंतजार में है, जल्दी से जुमला दो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह इंतजार नहीं होता, जल्दी बताइए वो खबर अजीम कौन सी है, वो खबर अजीम कौन सी है, वो नवाया अजीम कौन सी है? रसूल ने मुझे कहा देखो जो यहाँ है वो यहीं बैठ जाए, जब नहीं आए उनका इंतजार किया जाए। जुमला बदल दिया मैंने कल से, कल और जुमला था, आज और बात एक ही है। जो यहाँ है वो टिक जाए, जो आ रहे हैं उनका इंतजार किया जाए, जो चले गए उनको वापस बुलाया जाए। जब सब जमा हो गए, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, ऐसे नहीं जैसे मैं पैगाम देने वाली हूँ ऐसे बोलिए। इतनी गर्मी थी, ये तो कुछ भी नहीं है। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, नीचे से पाँव चल रहे थे, ऊपर से टिंडे थी, टिंडे चल रही थी। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, कोई सायादार दरख्त नहीं था, हर तरफ से गर्म हवा चल रही थी। इतनी गर्मी में आगे वाला बोले जिसको मैंने दिल करके धूप में रखी रहती हूँ, खबर अजीब बता रही हूँ, खबर अजीब बता रही हूँ। 1,24,000 नबी ये खबर लेकर आए थे, 1,24,000 नबी ये खबर पहुंचाना चाहते थे। आखिरी नबी है, आ गया है मिंबर पे, पहले खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद कोई हजर नहीं, कहीं पानी का आबो निशान नहीं है। इतनी गर्मी है, पाँव जल रहे हैं, सर जल रहे हैं, हाथी बेताब है, जल्दी खबर दे, जल्दी चले। रसूल ने जो भागने वाले थे उनका पाला लिया, अब जो बैठ गए और सबका पाला लेके रख दिया। कहा जो भागना चाहते हैं ना उनके पाला लेके मिंबर बनाया, मिंबर पे चले गए रसूल। जाकर रसूल ने तवील खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद अल्लाह के रसूल ने बगल में बैठी हुई एक हस्ती को उठाया, बगल में बैठी हुई एक हस्ती को उठाया, इतना बुलंद किया। ऐसे नहीं जुमले नहीं बोले, बहुत मेहनतों से जुमले तैयार होते हैं। इस मिंबर की कसम है अगर आप ऐसे ही सुनते रहे तो यूं ही आपको लेके चलते रहोगे। आप ऐसा बोलिए ताकि आपको खबरें अजीम दो। रसूल ने पास बैठी हुई शख्सियत को बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया जिसको मौलाना अली पढ़ के धूप में लाती रहती थे। ऐसे नहीं जैसे माँ ने हाथों पे उठाया तो या अली कहा था, खाने लगा तो या अली कहा था, बोलने लगा तो या अली कहा था, खाने लगा तो या अली कहा था। कहाँ बैठे आप, क्या सुन रहे थे? अल्लाह खबर देना चाहता है, हम लेना चाहते हैं, कैसे लेंगे? ऐसे बता दीजिए, रसूल बता दीजिए। इतना बुलंद किया सस्ती को, बगल की सफेदी नजर आने लगी, इतना बुलंद किया। एक रिवायत में ये है, एक रिवायत में है कि पूरे की पूरी शख्सियत को उठाकर अपने सामने रखा। रसूल ने कहा वही बात जो अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने कही थी, जिनके लिए रसूल आते रहे, जिनके लिए रसूल मेहनत करते रहे।
शजरकारी करना चाहते हैं तो जमीन को सरफेस किया जाता है। अपनी माँ और बहनों से तारीफ चाहती हूँ, शजरकारी की जाती है तो पहले जमीन को सरफेस किया जाता है। ये गंदम ले लीजिए, गंदम को जब बोया जाता है तो क्या खाद डाली जाती है, जमीन की गोड्डी की जाती है, पता क्या क्या किया जाता है, मुझे तो मालूम नहीं है, जितना सुना है बता दिया। अच्छा, जमीन को सरफेस किया जाता है, एक बात तो कर है। अच्छा, उसके बाद जो चीज बोई जाती है, मेरी माएँ समझ गई है, वो तो सरबलम कीजिए। जिस चीज को बोया जाता है तो फसल अच्छी होती है, और मैंने जरखेज जमीन पर दी है और पैगाम देने वाले हूँ अपने बच्चों को। एक पैगाम दे रहे हैं, देखिए मजलिस में बैठने का हम हकदार तब बनते हैं जब हम इस काबिल बन जाए तो कल सैयदा के सामने सुरखरू हो सके। अपनी माँ से तारीफ चाहती हूँ और बच्चियों को पैगाम दे रही हूँ, नौजवान बच्चियां जो मेरी यहाँ बैठी हैं। अज़ादार होने की सबसे बड़ी अलामतें कौन सी हैं? अज़ादारी में सबसे सर फहरिस्त नमाज, उसके बाद पर्दा है, उसके बाद सिद्क है, यानी हमेशा सच बोल रहे हैं, उसके बाद पाकीज़गी है। देखिए अगर जिस्म पाक होगा, अंदर से ज़र्फ पाक होगा तो फिर जिस्म पाक होगा। अकेला नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन लेना जरूरी नहीं है जब तक ज़र्फ पाक ना हो। जब अंदर से ज़र्फ पाक होगा तो कपड़ा भी जचेगा, चाहे वो हल्का भी पहना हुआ हो। ऐसा ही है, यानी अगर ज़र्फ पाक है, अगर ज़बान पाक है तो हम यहाँ बैठेंगे तो सैयदा हमारी इस्तकबाल के लिए आएंगे। कहाँ सैयदा, कहाँ हम बीवी की करीम से कहलवाने के कायल तब हो जाएंगे, काबिल होंगे तब जब ये अलामतें हमारे अंदर आ जाए। किसके अंदर ये अलामतें हैं? नहीं है, मैं अपने समय में कह रही हूँ, अपनी माँ से तारीफ चाहती हूँ, अपने बच्चों को पैगाम पहुंचा रही हूँ। खुदारा अभी आपको जिंदगी गुजारना है, ऐसे बन जाइए कि आपकी गोदियों में जो पले वो गुलाम अली असगर हो, वो गुलाम हुसैन हो, यानी आने वाली नस्ल जो आए, जो आपकी गोदियों में खेले, वो लब्बैक या इमाम की सदा बुलंद करे। यहाँ बैठना, मैंने कहा जमीन सरफेस कर दी। मौला का फरमान है कि जब तुम कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हो तो तुम हमारे जिक्र के जरिए से पहले उन दिलों को जरखेज कर लो। जब उनके दिल खिल जाए, जब उनके दिल जरखेज हो जाए तो फिर पैगाम पहुंचा दो। ये पैगाम है अपनी बच्चियों से कि कोशिश कीजिए कदम का कदम आजादारी की तरफ आते हुए, कदम का कदम आप जनाब सैयदा से जुड़ जाए। कदम का कदम, हर कदम उठाने से पहले देखिए जो मैं अमल कर रही हूँ कहीं ये बीवी को बुरा तो नहीं लगेगा, कहीं ये अमल मुझे बीवी से दूर तो नहीं कर रहा, मैं आजादारी में जा तो नहीं हूँ। जितनी मेरी नौजवान बच्चियां बैठी हैं मैं जा रही हूँ, लेकिन कहीं इस अमल से मैं बीवी से पीछे तो नहीं हट रही हूँ। अगर तो मेरा अमल ऐसा है कि मैं बीवी के करीब जा रही हूँ तो आजादारी कबूलियत के दर्जे तक पहुंच चुकी है। अगर नहीं है तो हमें दर्जा का दर्जा जाना है। उनका का फरमान है कि मेरे करीब आना चाहते हो तो कुरान की तिलावत कीजिए। जो ज्यादा कुरान की तिलावत बीवी को पसंद है ना, बीवी को बहुत पसंद है, इतनी पसंद है कि बीवी इश्क की हद तक जो है वो कुरान की तिलावत करती है। उठते बैठते जनाब सैयदा की सीरत पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ी जाती, वक्त नहीं है तो मोबाइल तो सबके पास है ना, मोबाइल में वो कर लीजिए फातिमा महद से लहद तक, उसमें बीवी की सीरत है, एक सफा रोज पढ़ लीजिए। आईना आते साल तक आप खुद महसूस करेंगी, मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी बेटियां खुद महसूस करेंगी कि आप जब आ रही हैं तो आपका दिल अंदर से रोशन हो चुका है, आपका ज़र्फ पाक हो चुका है। और इसमें सरे फहरिस्त नमाज, अगर नमाज छोड़ दी, और नमाज के साथ भी बहुत सारी चीजें हैं, रोजाना आपकी जितनी मजालिस रह गई हैं इसमें एक एक पैगाम देती चलोगे। तो अकेला करबला वालों को रोना काफी नहीं है, हम जिसको रो रहे हैं उनकी सीरत क्या है, हमने उनसे क्या सीखा है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को देखिए, जिनको हम रोने बैठते हैं, मुसीबत के पहाड़ टूटे, हम पे मुसीबत आती, थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है तो हम क्या करते, नमाज भूल ही जाती है, सिरे से भूल गए तो नमाज का कोई वजूद था नहीं। ऐसे ही है ना, सब तारीफ कीजिए, ऐसे ही है ना। थोड़ा सा बच्चा बीमार हो गया तो नहीं पढ़ते, तो वक्त नहीं मिला था, फिर बीमार हो गया तो नहीं पढ़ा, तो वक्त नहीं मिला, तो बीमार तो खड़ा नहीं हुआ, जा रहा था बैठा नहीं जा रहा था, ये था वो था। सैयदा को देखिए, जनाब ज़ैनब को देखिए,
मुसीबतों के पहाड़ टूटे हुए हैं, लेकिन नमाज को नहीं छोड़ा बीबी ने। सबसे बड़ी बात, पर्दे को नहीं छोड़ा बीबी ने, मजबूती से थामा हुआ। शिविर कितनी मर्तबा गया है बीबी की चादर लूटने के लिए। ये जो हमारे सरों पे आज मौजूद है ना, जिसमें हम लिपटी हुई हैं, ये ऐसे बहुत आसानी से हमारे तक नहीं पहुंच गई है। इसकी हिफाजत कीजिए खुदाया, इसमें हम सब खानदान के लिए इज्जत है। आपके माँ, आपकी बाप, आपके भाई सरबलंद के चल सकते हैं बाजारों में, अगर आप इज्जत घरों में बैठी हुई हैं। अगर आपके सरों पे ये चादर मौजूद है, हर किसी माना में है, तो आपके बाप, आपके भाई, आपके बेटे, आपके शौहर सरबलंद करके जाएंगे। लेकिन अगर वो चादर कहीं सिरक गई तो फिर उनके साथ झुक जाएंगे, आपका सरबलंद हो जाएगा। जैसे आजकल कुराशो दौर है, अगर सीरत फातिमा को पढ़ना है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वक्तन बवक्तन, जैसे भी वक्त मिलता रहेगा। अपने बच्चे यहाँ है तो वो भी आज के बाद हम जब भी मजलिस में आएंगे, एक ऐसा अमल छोड़ देंगे जिससे आप नाराज हो भी, तो आज जो वर्षा बोलते हैं उससे नहीं होता। करबला में जितनी भी बीबियां मौजूद हैं, सबके सरों पर उनके शौहरों का साया मौजूद है। करबला में जितनी भी बीबियां हैं, सब अपने वारसों के साथ हैं। इससे पहले एक जुमला कहना चाहती हूँ। ज़ैनब उस हस्ती को कहा जाता है जिसने एक दो ने पूरे का पूरा अपना घर दीन को कुर्बान कर दिया। अपनी अम्मा का घर नहीं, अपना घर नहीं। ऐसा नहीं बीवी ने फकत अपने भाई कुर्बान किए, अपने भतीजे कुर्बान किए, अपने भांजे कुर्बान किए, नहीं, बीवी ने अपने बेटे भी दे दिए। आप सब मान बैठे हैं, बहुत वक्त नहीं, तो हम जल्दी के साथ मुझे इस नंबर को छोड़ना है। अजान बहुत करीब आ गई है। एक जुमला बीबी की बीबी कहती है, आशूर के बाद मुझे कोई अम्मा कहने वाला नहीं है। मोमिना कभी कभी शाम की तरह मुंह करके मुझे अम्मा कही। कैसी हसरत है बीबी। कल जहाँ मसाइल छोड़ा था, एक जुमला वहां से पढ़ दो। बीबी जब अपने घर गई है ना, तो वो छोटे छोटे जाए नमाजों को अपने सीने से लगाया। जाए नमाजों को सीने से लगा के ना, तो बीबी ने ये किया, ममता जानती है, बस ममता के अलावा कोई भी नहीं जानता। हर माँ जानती है बच्चे का दुख क्या होता है। बस बीबी ने सीने से लगा के एक जुमला कहा था, मेरे अमर मोहम्मद, आप माँ का दिल नहीं रखता। ज़ैनब क्या करे मेरे बच्चों, माँ क्या करे मेरे बच्चों, आप घर में रौनक नहीं, तुम्हारे जाने से मेरा घर बर्बाद हो गया। पहली मर्तबा बीवी अपने बच्चों को रो रही है, आज तुम्हारे जाने से मेरे घर की रौनक खत्म हो गई है। मेरे बच्चों, अब माँ से सब्र नहीं आता, माँ को माफ करना। में कैसी कैसी माएँ मौजूद हैं, ऐसी अजीम माएँ भी हैं जिनके सर पे उनके शौहर का साया नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को तैयार कर रही है जहाज के लिए। बहुत जल्दी से बीवी को पुरसा ले लीजिए, आज हम उसको पुरसा देंगे। जो हसन की बेवा 10 साल हो गए हसन को गुजरे हुए, हुसैन जैसी हस्ती की मेरे साया जिंदगी गुजार रही है बीबी। 13 बरस के हो गए कासिम, बीबी हुसैन के साथ साथ है। और आपकी आंखें कबूल करें, हर माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही है। हुसैन मौला ने शब आशूर में एक खैमे को देखा,
सब माँ ने अपने बच्चे अपने सामने बिठाए हुए और एक माँ को देखा जिसका बच्चा उसके सामने बैठा है और उन्हें कह रही है कासिम तुम्हारी माँ सैयदाज़ादी नहीं है बेटा, कल सैयदा से सुरखरू करना, शर्मिंदा न करना। कासिम को समझा रही है। सुबह का वक्त हुआ, कासिम चचा के सामने आए और आगे इजाजत करें। चचा जल्दी इजाजत दीजिए। सर से पाँव तक देखा हसन को, देख के हसन का बेटा हसन है ना, देखा और कहा तुम तो मेरे भाई की निशानी है, कैसे इजाजत दे दूं? तेरे जाने से तुझसे तो मेरे भाई की खुशबू आती है, जब तू चला जाएगा भाई की खुशबू कहाँ से महसूस करूंगा? कासिम पर्दे में चला जाता मेरे भाई हसन की निशानी है। कासिम वापस आ गए, दूसरी मतलब आ गई, तीसरी मतलब माँ ने देखा अभी तक कासिम जिंदा है। कहा कासिम सब के माँ बच्चे चले गए और तू अभी तक जिंदा है। कहा मुझे चचा ने इजाजत दी थी, बीवी ने बुर्का सर पर रख लिया, बुर्का सर पर रख के बीवी चली है। जनाबे इमाम हुसैन ने देखा कि भागा जा रही, खड़े हो गए। कहा मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। देखा कि अब कोई हम सवार शरीफ लेकर आ रही। बीवी ने कहा कासिम तुम्हारे बाबा जब इस दुनिया से जा रहे थे ना, तुम बहुत छोटे थे, उस वक्त तुम्हारे बाबा ने कहा था कि मैं इसके पासों के ताबीज बांध रहा हूँ, जब कभी मुसीबत का वक्त आ जाए ये ताबीज को भी हुसैन को दे देना। तो बीवी ने वो ताबीज को ना मौला की खिदमत में पेश किया। कासिम को इजाजत मिली, कासिम चले। कद इतना छोटा 13 वर्ष का बच्चा कितना होता है, घोड़े की रकाबों में सही से पाँव नहीं आता। शहजादा चला, उन्हें फरमा टोपी का सहारा चला। अब आप रोने के लिए बैठी है, हमारे मजहब में रोना भी जायज है, मातम भी जायज है, अगर सवाब रखता है। ये रोना ये मातम ये अहूर का एक माँ को गुस्सा देना है और वो माँ यहाँ मौजूद है। रसाए पढ़ने से पहले मैं बालियान के लिए दुआ करना चाहती हूँ, परवरदिगार शहजादे के सदके बालियान की जो आजादी को पूरा कर देना, इनके बीमारों को सेहत कामिला देना। मेरी बहन रुपैया उसके बालक बीमार है उनको सेहत देना। परवरदिगार मेरी बहन पीछा उसका बेटा बीमार है उसको सेहत कामिला दे देना। जहाँ जहाँ छोटे छोटे बीमार जिस बीमारी में होता है तमाम को सेहत देना। जिनके पास बच्चे नहीं है मेरे सामने जो मेरी माँ बैठी है जिनकी बेटियाँ खाली है, परवरदिगार इनको जिंदगी वाले अपने साल तक बच्चे अता कर देना। जिनके बच्चे हैं उनको सलामती अता कर, परवरदिगार जिनके पास घर नहीं उनको घर दे देना। इस शहजादे के सदके में शहजादा चला और बरबा मुसल्ले पे खड़ी दुआ कर रही थी, परवरदिगार मेरी कुर्बानी कबूल कर लेना, परवरदिगार मेरी कुर्बानी कबूल करना। शहजादा में आया वहाँ जल्दी से पढ़ रही हूँ, आपने ऐसे ही तोहफा देना जैसे बरबा सामने खड़ी हो, आपसे कह रही हो तुम्हें जब घटनी में मेरा बच्चा आया था मुझे आज तुम्हारे लसाए बैठी है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है माँ का दुख क्या होता है, माँ का दुख क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, माँ का दुख कैसा दुख होता है। आज कासिम चले मैदान में आए, कई फौजियों को कई शामियों को कई फौजियों को फैनार किया। अब एक याद भी आ रहा है, कासिम ने मुकाबले में पहले उसने अपना एक बेटा भेजा, कासिम ने फैनार किया, दूसरा बेटा कासिम ने फैनार किया, उसके साथ बेटा चले गया वो खुद आया, उसने कमर पे हाथ रखे रखे और जो कमर नहीं लगा और जो आपने हाथ में लेना है मुझे अगर कर सको ऐसे ही मेरे को कैसे लगाया था हुसैन की मजलिस में ऐसी आयत थी जैसे पूरी माँ जवान बेटे की मैयत को रोती है। हुसैन की मजलिस में गरीब बन के आया था, हुसैन की मजलिस में शर्मा के ना आया था, हुसैन की मजलिस में खुदा पलट हुआ था। मेरे छह वाला कहते हैं अल्लाह हसन का तुझा फरिश्तों को उस मजलिस में भेज देता जिसमें गिरने वाला ही होता है, जिसमें अपने मुकाबला होती है, जिसमें माता किया इसमें होती है। अपने सीनों में हाथ मार के फरमाओ के कुल साले अब जो मुकाबले में आया है तो वो इनाम नहीं है, बहुत बड़ा पहलवान है। आते ही उसे कासिम से कहा देखो तुम्हारे घोड़े की रकाबों में क्या है,
होगी। अब जिसके पास तलवार थी मुझे कटेंगे सबके याद। कासिम का बड़ा केस अब दरगाह याद में शहजादे का घोड़ा भागा, जिसके पास तलवारें थी उन्हें तलवारें मारी, जिसके पास नेज़े थे नेज़े मारे। अब कासिम जीत से जमीन पर आ गया। ऐसे ही होती है ना फरमाओ। अब मैं बताऊं कि कासिम कितनी कैसे हुसैन भी पामाल हुए, कासिम भी पामाल हुआ, फिर हसन का खून भी पामाल हुआ, सैयदा का लाल भी पामाल हुआ। अब शहजादा जमीन पर आ गया। मशरिक के घोड़े मगरिब को दौड़े, मगरिब के घोड़े मशरिक को दौड़े। ऐसे नहीं, जैसे माँ अपने बच्चे की मैयत में रोती है ना, आपकी माँ बेटी खुदा अपने बच्चों में हाल करे। अल्लाह एक का चेहरा देख रही होगी, कौन मेरे कासिम का रो रहा है, कौन मेरी उजरी गोद का गुस्सा दे रहा है। सारे मातम करके रोइए अपनी उजरी गोद का गुस्सा दीजिए। शहजादी देख रही है। कासिम जीत से जमीन पर आ गया। मशरिक के घोड़े मगरिब को दौड़े, मगरिब को मशरिक को दौड़े, शमाल के जनूब को दौड़े। अब कासिम टुकड़ों में बट गया। उस कासिम घोड़ी की सिमों में, आगे नगारों में, कुछ टुकड़ों में अजरों में। खुदा आपके आंसू कबूल करे, खुदा आपके मातम कबूल करे, खुदा आपका रोना कबूल करे, खुदा आपको सहरे देखने नसीब करे, खुदा आपकी जवानियां नसीब करे, आपके बच्चों को जवानियां नसीब करे, खुदा आपके बच्चों को सहरे देखना नसीब करे, खुदा आपके भाइयों के पैर करे, खुदा आपके बेटों के पैर करे। उजड़ गया मैं परवाह न बनाए। आवाज लगाई माँ, चचा मेरी मदद को आई, चचा मेरी मदद को आई। तारीख में लिखा है हुसैन इतनी जल्दी किसी की मैयत में नहीं पहुंचे जितनी जल्दी कासिम की मैयत में पहुंचे। हुसैन ने वहां जाकर आवाज लगाई, आई ना कासिम, कहाँ हो कासिम। बीबी हौसला ले लिए, आई ना कासिम, कासिम कहाँ हो। खाके करबला से आवाज आई ना, आई ना आवाज आई लबैका, घोड़ों की सुबह से आवाज आई लबैक लबैक। हुसैन ने अपनी हवा बिछाई, बिछाकर हुसैन देखिएगा, हुसैन ने हवा बिछाई है। एक एक टुकड़ा उठाते हैं, और माँ बैठी है ना, बताने की जरूरत नहीं है कि माँ का दुख क्या होगा। एक एक टुकड़ा उठाते हैं, रख देते। महसूस किया मेरे मौला ने कोई सबक मेरे कान में है और आकर पास से टुकड़े उठा रहे हैं। और मैंने आवाज दी, कौन है इस गुर्बत के आलम में मेरा साथ देने वाला। अब नकाब उलट दिया हुसैन ने, नकाब उलट के कहा हुसैन मुझे बुला दो, मेरा कासिम बुला दो। गठरी बनाई हुसैन ने, गठरी बनाकर चले, गठरी सीने से लगाए, आए हैं खैमे में। परवाह अपने बच्चे को ले लो, आखिरी जुमला है, खुदा आपका मुकद्दर है। जिसको परवाह नसीब होगा ना, परवाह को गुस्सा लेना वो जरूर बोलेगा, जिसकी दुआ होगा ना वो जरूर बोलेगा। बीबी देख रही है सबको, सबकी आंखों में आंख लगा रही है, सबके आंसू इकट्ठे कर रही है। गठरी खोली बीबी ने, बीबी एक एक टुकड़ा उठाती है, सीने से लगाती है, आंखों से लगाती है, लबों से लगाती है। हुसैन देख रहे थे, आखिरी जुमला है,